Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover another part of class 11th. The name of the chapter is The Summer of White Beautiful Horse, and this is the last part of the lesson. So let us begin. Till here we had learnt that Murad and Aram had a very nice ride early in the morning on a white beautiful horse. And later when they both went to the home, in his uncle's house, Uncle Khusro's house, he saw a man coming in and he was named as John Byro, and he was the person who had lost his horse. So that simply means the horse was stolen by Murad and that belonged to John Byro, who was a Assyrian. And when he came to talk to Uncle Khusro shouted at him and he went back home very much disturbed and disappointed. So we'll continue. हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि मुराद और अरम ने जब हॉर्स राइडिंग की और उसके बाद जब वो घर आए तो अरम को पता चला कि उसके घर एक जॉन बाइरो जो फार्मर था, जो असीरियन था, जो उनके कबीले को बिलोंग नहीं करता था, उनके ट्राइब से नहीं था, उसे पता चला कि उसका हॉर्स था वो वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स और वो लगभग 1 मंथ से गायब था। इसका मतलब मुराद ने उसको अपने घर पिछले 1 माह से रखा हुआ था और उससे वो राइडिंग कर रहा था। My mother explained, he has a gentle heart. She said, it is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. तो मेरी मदर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि वो जेंटलमैन है और वो बहुत ही होमसिक हो चुका है, इतना लार्ज मैन घर में रह के। तो फार्मर जो था वो चला गया और उसके बाद मैं सीधा कहाँ दौड़ कर गया, मुराद के घर पे। तो दैट वाज ऑब्वियस व्हेन ही गॉट टू नो दैट whom actually the horse belongs, he got upset and he wanted to go and speak to his cousin, so he ran and he reached to his house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin. रॉबिन एक चिड़िया होती है विच कुड नॉट फ्लाई। जब उसने देखा तो हमें ये लाइन हमें सजेस्ट करती है दैट ही हैड अ काइंड हार्ट, ही टुक केयर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो। तो उसने देखा कि वो एक चिड़िया है जो रॉबिन है, उसके पंख को चोट लगी थी, वो उसको रिपेयर करने में लगा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, ही वॉन्टेड दैट इट शुड बी हील्ड, और वो उससे बातें भी कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड। द फार्मर जॉन बाइरो, I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो उसने उसे बताया कि मुझे पता है वो हॉर्स किसका है, जॉन बाइरो का है। वो आज हमारे घर आया था और वो अपने हॉर्स को वापस चाहता है और वो तुम्हारे पास 1 मंथ से है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे वापस नहीं दोगे जब तक कि मैं लर्न ना करूँ कि राइडिंग कैसे की जाती है। सो नाउ the problem was he got to know that the horse belonged to John Byro and writer wanted to learn horse riding, so he went to convince Murad that at any cost he should not be giving it back to the person, to the landlord, because that lord of the house, horse, because he wanted to learn how to ride a horse. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. उसने कहा तुम्हें तो ऐसे साल लग जाएगा, और वो उस पर भी तैयार था। उसने कहा कि let it be. I'll wait for another year until I learn. I won't give it back. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Gargolanian family to steal? The horse must go back to its true owner. उसने कहा 1 साल रखने का मतलब इट विल कम अंडर स्टीलिंग, और तुम चाहते हो कि गारगोलेनियन फैमिली में कोई स्टील करे और ऐसा लोगों के सामने संदेश जाए, तो मैं जो हूँ इसको ओनर को, ट्रू ओनर को वापस कर दूंगा। व्हेन, आई सेड, इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। सो वॉट ही डिड, ही हैड रिपेयर्ड इट्स विंग्स, और उसने जैसे ही उसको छोड़ा, ऑलमोस्ट इट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिरी, लेकिन फिर वो हाई स्ट्रेट आसमान में उड़ गई। सो दैट मीन्स ही वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स रियली वेल। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away.
So here he is telling the routine afterwards. Every week they wanted to ride on the horse. तो हर बार में क्या होता था, जब भी मुराद उसको राइड करता था वो अच्छे से राइड कर पाता था, बट वेन एवर इट यूज टू बी द टर्न ऑफ द राइटर, वो उधर उधर उसको गिरा देता था और आगे निकल जाता था. सो दैट सिंपली मीन्स he was still not able to learn how to ride. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो कहता है मुझे ऐसा लगता था शायद मैं कभी भी वैसे लर्न नहीं कर पाऊंगा जैसे कि मुराद कर लेता है. One morning on the way to Fikvegetian's desert vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. कहता है एक मॉर्निंग की बात है, वो फतवाजियन डिजर्टेड वाइनयार्ड से होकर गुजर रहे थे जब उन्होंने जॉन बायरो को उस टाउन में रास्ते में देखा. लेट मी डू टू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स. और ये उसका एक तकिया कलाम जैसा था कि मुझे फार्मर्स से भी बात करने का तरीका आता है. लाइक वी लर्नड इन द बैक पेजेस कि आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस, ऐसे ही उसने कहा कि मेरा आई हैव अ वे विद फार्मर्स. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. तो उसने उसको गुड मॉर्निंग कहा तो फार्मर ने उस हॉर्स को बहुत ध्यान से देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? माई हार्ट, माई cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? तो उसने कहा कि इसका नाम मैंने माई हार्ट रखा है. उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है, जॉन बायरो ने कहा, कि ये वही हॉर्स है जो मेरा पिछले 2 वीक्स कितने आई कुड स्वेयर इट हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी वीक्स अगो, जो मुझसे चुराया गया था. क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक श्योर वेदर द हॉर्स बिलोंग टू हिम और नॉट. ऑफकोर्स मुराद सेड. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, यानी उसके दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ था. सो दैट वॉज द ओनली आइडेंटिफिकेशन ही कुड मेक इट. ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. अ सस्पिशियन मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. उसने कहा टीथ पे टीथ है, पक्का ये मेरा ही हॉर्स है जिसके साथ एक टूथ पे टूथ है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारी फैमिली किस पे मानी जाती है, ऑनेस्टी पे मानी जाती है, तो मैं तुम्हारा बिलीव करता हूँ. मुझे पता है ये हॉर्स शायद मेरे हॉर्स का ट्विन हो, ट्विन मीन्स जुड़वा हो, लेकिन ये मेरा हॉर्स नहीं है, बिकॉज गार्गोलेनियन फैमिली इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी. गुड डे, जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around with making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. So here we again get to know कि आज उन्होंने क्या किया, उसको उसके मालिक के पास वापस उसी बार्न में ले जाकर बांध दिया और उसने वहाँ विस्पर करके कहा कि यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं, ये हम पर भौंकेंगे. तो उसने कहा नहीं. ही अगेन टोल्ड दैट ही हैज़ अ वे विद डॉग्स. दे वुड एट समबडीज एल्स, ही सेड. उसने कहा कि वो किसी और पर भौंकेंगे लेकिन मुझ पर नहीं. माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे. सो दैट इज़ हाउ ही लेफ्ट द हॉर्स टू इट्स रियल ओनर. And he loved, hugged, and that shows that he was too much belonging. He had too much belonging with the horse, and he didn't wish to leave it, but he had to, as it did not belong to him. He had to leave it to its true owner. तो इस तरह से उसने उसको उसके ट्रू ओनर के पास छोड़ दिया और वहाँ से वो लोग चले गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उसने वो सरी में आया. सरी वही हॉर्स कार्ट होती है जिसमें वो हॉर्स को लेकर आया और उसने मेरी माँ को दिखाया कि उसे वो किसी ने चुरा लिया था और वापस भी कर दिया. आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू. आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो, हु वॉज इन द पार्लर, बिकेम इरिटेटेड एंड shouted, quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. उसने कहा कि that shows that how well he was taken care of.
मुराद ने उसको इतने अच्छे से रखा कि वो स्ट्रोंगर हो गया था और उसका टेम्पर भी अच्छा हो गया था, लाइक ही वॉज एबल टू कंट्रोल ईजिली। तो कहता है अंकल खुसरो ने कहा, अब तुम जो पार्लर से वापस आए थे, उसने शाउट और इरिटेट होकर कहा, चुप हो जाओ, अब हॉर्स तुम्हारे पास रिटर्न हो चुका है, सो यू नीड नॉट टू पे अटेंशन ऑन एनी अदर थिंग रादर देन गेटिंग योर हॉर्स बैक. So students, chapter gets over here. I hope you liked the video. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We will soon meet in next chapter. Till that, take care.